नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद और मेरे साथ विजय। वी बोथ आर बैक टुडे आफ्टर सम few 3-4 weeks of individual analysis because of some hectic schedule of either Vijay or either mine। हम दोनों किसी न किसी कारण बिजी चल रहे थे एवरी वीक। इस बार फिर से कंबाइंड एनालिसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम विथ एलियट वेव, कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस मिलेगा। सो पूरा कंप्लीट दिसंबर का व्यू प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम आज। ध्यान से सुनिएगा, आपको कैसा लगता है आपका फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज पोजीशन लेने के पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखिएगा। खाली हेडिंग को ध्यान में रखते हुए पोजीशनल ब्लाइंडली मत लीजिएगा। सो चलते हैं पहले चार्ट्स की तरफ। पहले देखते हैं एलियट वेव में क्या इंडिकेशन आ रहा है बैंक निफ्टी में। ये रहा मंथली चार्ट बैंक निफ्टी का। बिग राउंड नंबर 42,000 के आसपास जाने के बाद बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया करेक्शन दिया है। कितना हुआ आनंद? आई थिंक कुछ 12-13% का करेक्शन हो गया ना बैंक निफ्टी में। या सो दैट्स वेरी गुड करेक्शन। approximately 15% actual में 15%. 14-15%। Wow, Yeah. that's quite deep in comparison to Nifty. That's quite deep. इतनी दूर तक आएगा ये मैंने तो सोचा नहीं था, इतनी जल्दी आएगा। So price wise it was possible, but time wise I think काफी deep correction काफी जल्दी आ गया है, which is great because then it gives us an opportunity to look at what trading opportunities do we have. कोरोना बॉटम से अगर देखा जाए मंथली चैनल पे 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स वेव यहाँ खत्म होता हुआ दिखता है, एंड देन उसके बाद एक ABC करेक्शन यहाँ खत्म हो गया था, and then we started going up. So if I go down the scale on weekly charts, this is the structure. 1 2 3 4 5 impulse wave 1 done here, deep correction in wave 2 which came back to the previous wave 4 territory, and वहां से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर रहा है काफी लोगों के लिए। unless you look into the internal wave count, it looks like a lot of खिचड़ी। काफी हद तक मुझे भी लग रहा था कि कहीं ये सिंपल इम्पल्स के बाद A डाउन एंड B अप तो नहीं है, बट डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर the distance has traveled is too high. Like this leg is 1.618 times of this correction. तो इतना बड़ा irregular flat होता नहीं है। If I'm wrong, if there are any examples from other charts, please enlighten me. But मुझे लगता नहीं कि एक इंडेक्स पे 1.618 टाइम्स का irregular flat होना चाहिए। So if I go down the scale, जो लोग हमें काफी महीनों से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा ये इंटरनल वेव काउंट में अपडेट करता रहता हूँ। सो कोरोना बॉटम से आपको दिखेंगे क्लियरली 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे एक इम्पल्स खत्म हो गया था, एंड दिस वाज द करेक्टिव वेव, एंड वहां से ये जो पूरा खिचड़ी हमें मंथली स्केल पे दिख रहा था वो कुछ ऐसा है, where we can see 1 2, and again within the third wave there's a 1 2, right? So the waves are subdividing. So again 1 2 3 4 5, यहाँ 3 ब्रैकेट लग गया, ये 4th ब्रैकेट है, and ये 5th ब्रैकेट है। So most likely within a larger wave 3, बोल्ड में यहाँ जो है ये 2 था, तो ये 3 के अंदर का 1 2 3 खत्म हुआ है, and this is a very deep 4th wave. So I was getting very uncomfortable once this low broke actually, because it's too deep for wave 4. But there are many instances when wave 4 is about 50%. Generally Elliott wave rules यही बोलते हैं कि 23.6% and 38.2% is wave 4 retracement, but there are many examples where it went all the way back to 50%. Anything beyond 50%, then the wave count is wrong. So ये जो line है for 34 to 85, this is the top of this first wave here.
this should not be breached. अगर ये breach हो गया तो ये wave count गलत है. Then somewhere, we can assume that I have gone wrong. So maybe, it's 1, 2 and maybe third ended here and there was a very small fourth and actually यहाँ पे fifth लग गया है. ये हमें करना पड़ेगा, but that will happen only if this level is breached. Till that point, we can continue to assume that this is a very deep fourth wave. Price is below both 20-day as well as 40-day moving average, and आप जैसे देख सकते हो ये channeled correction रहा है. Price has been within this channel. In fact, Friday when it went above it, I was happy कि चलो हो गया है, but it actually came down and closed within the channel. So maybe we need to give it another day to show us its true colors. Let's also just look at hourly structure just to see. Hourly में भी कोई ज़्यादा promise है नहीं अभी, क्योंकि इस bottom से impulse structure नहीं दिखता है. Right, it still looks like an ABC correction. So maybe there's one more little wave to go down. But as long as this low of 35,328, जब तक ये break नहीं होता है, we can assume that this is a considerable bottom that has happened here. That's it from me, Anand. Fifth wave का possibility क्या दिख रहा है? If we assume कि fourth has completed around there or it may complete near about, what's the upside potential for the fifth wave? Whether will it cross the new highs? It should cross this high 41,830 जो हमारा previous high था, इसके ऊपर जाना चाहिए wave fifth को, but fifth wave failures भी होते हैं. Okay, and this complete structure will be just part of the larger degree third, the bold one. Yes. So important thing to notice is 1, 2, 3, 4. ये अगर वन बड़ा वाला वन है, एक इंपल्स यहाँ खत्म हुआ है. अगर मैं सिर्फ इसका लेंथ देखूं एंड आई प्लॉट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वेव 2, तो टारगेट्स बहुत बड़े बड़े आते हैं. अप्रोक्सीमेटली वी गेट अराउंड 50,000, 49,000. करेक्ट, 48,000, 50,000 के टारगेट्स आते हैं. बिकॉज वेव करेक्ट वेव 3 विद इन 5 waves, wave 3 cannot be the shortest wave. However, it can be the second shortest wave. Even going by that logic, assume करें कि ये wave 3 जो है इस wave 1 से भी छोटा होगा, तब भी हम 48,000 के आसपास expect कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको अगर मैं measure करके दिखाऊं, आपको दिखेगा 20,400 points. ठीक है, 8 महीने लगे हैं इस मूव में, बट 20,000 पॉइंट्स का था. अगर इसी 20,000 को मैं इधर से प्लॉट करूं तो ये बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे ऊपर. दिस चार्ट डजंट अलाउ मी टू गो बियॉन्ड द जोन, बट बहुत बड़े टारगेट्स हैं. गेटिंग समवेयर अराउंड 48,000 ना, इसका लो 29,000 चेंज है, तो 49,000 के पास आएगा. इवन इफ माइनस शॉर्ट आया तो भी यस अराउंड 48,000. एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाली बात यह है कि ऑन द मंथली स्केल price is taking support on the 40-month moving average, this green line. ठीक है, and of course this month has just started, तो इस candle को अभी हम we can't base our judgment on it, but price यहीं से react कर रहा है, which is very good because the last time price went below 40-month moving average was here, right? So basically October 2020, एक साल हो गया है. एक साल से हम ऊपर ही रहे हैं 40-month moving average के. So that's a very encouraging sign. And even if we go down to the weekly scale, क्या हो गया? हाँ, if I go down to the weekly scale also, it's price is resting on the 40-week moving average, right? Oh, sorry, मैं पहले गलत दिखा रहा था. It was not monthly, it was weekly. I'm sorry, my mistake. So 40-week moving average last हमने October 2020 में 40-week moving average, it's broadly speaking 200 DMA on a end of the day charts multiplied by 5. Must be. I have to it comes add it here. 35,600 approximately. So जब तक वो level है तो हमें कोई टेंशन नहीं है. And the low was 35,300.
तो ये है कहानी. एंड आई थिंक वंस द प्राइस क्लाइम्स बैक अबव दिस चैनल, एक दो दिन अगर क्लोजिंग दे दे तो ये चलने लगेगा. और ज्यादा सेफ रहना है तो ये स्विंग हाई 37,890, ये स्विंग हाई के ऊपर चलेगा तो फिर तो वी कैन डेफिनेटली लुक एट मच हायर टारगेट्स. बट इसमें कूदने की कोई जल्दी नहीं है. आई थिंक इंडिविजुअल बैंक स्टॉक्स हम देख सकते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैंक स्टॉक्स व्हिच आर ऑफरिंग सम वेरी गुड ट्रेड्स. Okay, let us see now या बैक प्राइस टू यू. एंड वॉल्यूम में. थैंक यू विजय. प्राइस वॉल्यूम का झलक देखते हैं इसमें अब. थैंक्स विजय. अब देखते हैं प्राइस वॉल्यूम में एक्चुअल में कुछ पैटर्न अच्छा बन रहा है, अपसाइड का टारगेट बन रहा है या नहीं. डज दिस मैचेस विद द व्यूज ऑफ एलियट वेव. पहले मंथली पे जाते हैं. अगर आप लोगों को याद हो, few months, couple of months back actually में I have said once this breakout happens about 36,000, ये जो ब्रेकआउट होगा 36,000 पे, इसका मिनिमम टारगेट 40,000 रहेगा एज पर दिस इमीडिएट रेंज. 32,000 का जो रेंज था. बट ओवरऑल टारगेट फॉर दिस विल बी अराउंड this approximately 7,000 plus points above this high, which comes around 45,000. This was the minimum potential target, and the actual potential target which I was looking and which I have kept on telling, I still stick to this view. ये जो 32,600 से 16,000 अप्रोक्सीमेटली का जो अप्रोक्सीमेटली 16,000 पॉइंट्स का जो रेंज था लास्ट ईयर कहो 2020 का, उसके पहले का जो भी ये रेंज था इन 2019 में यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर सडन डाउन मूव दिया एंड देन दिस अप मूव. दिस कंप्लीट पैटर्न, ये जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो माइनर कंसोलिडेशन हुआ इन दिस पीरियड ऑफ 4-5 months 6 months. सो 32,000 पे अगर 32,700 पे 16,000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली लगाते तो वी गेट टारगेट अराउंड 48,700 और सो. एंड दिस इज द टारगेट विच आई स्टिल स्टिक विथ. इसके लिए मैंने विजय आपको पूछा था कि ये फिफ्थ वे का पॉसिबिलिटी वहां दिख रहा है क्या, जो मेजर थर्ड बना लार्जर डिग्री थर्ड बनाएगा एज पर दोस काउंट 48,000 पॉसिबिलिटी. एंड वी आर गेटिंग ब्रॉडली सेम अप्रोक्सीमेटली 20,000 पॉइंट फ्रॉम दिस लोज ऑफ 30,000 के पास के जो लोज है. दिस इज फ्यूचर चार्ट. सो 30,000 के पास के लो से 20,000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली या थोड़े बहुत उससे कम भी आएगा तो वी गेट अराउंड 48,000 पॉइंट्स. बैंक निफ्टी 48,000 का टारगेट बनता है. And as per this also we get. This is the beauty of the charts. Always major patterns, major levels get matched with across any indicator, any tool we use. वो यही इसमें भी सेम मैचिंग आ रहा है. दिस इज मंथली चार्ट. ब्रॉडर पिक्चर 48,000 का पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट है. सो व्हाट विल बी द नेगेशन लेवल फॉर दीज थिंग्स. अगर मंथली पे गौर करो, जब तक ये जो ब्रेकआउट के पहले का लेवल है अराउंड 34,000, as long as this is holding, this target of 48,000 remains. उसमें कोई भी नेगेशन लेवल अभी तक नहीं है, मगर इतना बड़े स्टॉप लॉस से होल्ड करना इजी नहीं है. सो लेट अस लुक एट द वीकली एंड डेली स्केल क्या दिख रहा है. नाउ इफ यू मूव बैक टू वीकली एंड ऑब्जर्व दिस बैक टू बैक 2 week वॉल्यूम्स, स्पेसिफिकली लास्ट वीक वॉल्यूम, दीज वॉल्यूम्स आर हाईएस्ट सिंस अप्रैल. ये जो लोज है अप्रैल 2021 सॉरी जुलाई 2021 के, उसके पहले फिर अप्रैल जून 2021 के, यानी दिस ईयर सेम ईयर दिस लोज, वहां से भी हाईएस्ट वॉल्यूम्स है. द रीसेंट वॉल्यूम्स आर हाईएस्ट लास्ट वीक वॉल्यूम्स. ये कंसोलिडेशन जो किया था बैंक निफ्टी ने फॉर 3-4 months विद इन दिस पीरियड ऑफ 34,000 to 36,000, जो बहुत पकाया था, जो बहुत कॉम्प्लेक्स था, जो विजय ने भी हाईलाइट किया है, वो स्ट्रक्चर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली वेव काउंट वहां पे कैसा लिया जाए क्या है, बिकॉज ऑफ बैक टू बैक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एंड लुक एट द ब्यूटी, आफ्टर दिस कंप्लीट डाउन मूव वी गेट हाई वॉल्यूम्स अराउंड इन दोस जोन ओनली. यानी कि ये जो बायर्स थे, ये जो डिमांड जोन था, दोस डिमांड इज अगेन प्रोटेक्टिंग दिस डाउन मूव. यहाँ पे सप्लाई को कैप्चर किया जा रहा है, डिमांड इज trying to defend it.
and if this holds on, यानी कि last week का low get defended, which is around 35,450 as of now in future. So broadly speaking 35,400 500 का zone अगर defend करता है बैंक निफ्टी coming weeks में, then we can expect a rally back in this. Now comes the question of ऊपर कहां तक जा सकता है immediate basis में for coming week and then December month. Let us look back again to the week monthly chart once. What has been observed in bank nifty basically, नॉर्मली जब भी ये रीटेस्ट करता है एक पैटर्न को, उसके प्रीवियस मंथ के हाई के पास फिर चला जाता है. सो अगर इन दिस केस ये जस्ट रीटेस्ट करने आया था ब्रेकआउट को, तो प्रीवियस मंथ हाई कम से अराउंड 40,200 वहां तक जा सकता है इमीडिएट इन दिसंबर एज पर मंथली चार्ट. बट इफ यू लुक बैक टू डेली चार्ट नाउ, दिस इज द एक्चुअल पैटर्न वेयर वी नीड टू लुक एट फॉर अ डेली ट्रेडिंग, क्योंकि हम पोजिशनल मंथली कंटिन्यू पोजीशन लेके होल्ड नहीं करते फॉर कपल ऑफ मंथ्स और सो. बैंक निफ्टी गिव्स लार्जर स्विंग्स, तो इसमें अप एंड डाउन में ही मजा ज्यादा है. एंड सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑन डेली चार्ट. फर्स्ट आई कम टू नॉर्मल पैटर्न ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम एंड देन आई कम टू इंटरेस्टिंग पैटर्न. नॉर्मल में जैसा विजय ने बताया है, शानदार ट्रेंडिंग मूव दिया है, चैनल मूव था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डाउन मूव था. एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस ऑन दिस स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डाउन मूव, for this complete down move, the highest volume have come across right near to the lows. Isn't this a beauty? पूरे डाउन मूव में इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं मिले जितने इस दिन आए थे, एंड बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पे. क्वाइट नेचुरल यहाँ पे डिमांड वाले आ रहे होंगे, क्वाइट नेचुरल इस जोन में डिमांड था तो वो वापस आ रहे होंगे. मगर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, अगर ये डिमांड वालों को लगता था कि नीचे जा सकता है और ज्यादा, तो यहीं पे क्यों आते थे? वो थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा वेट करते थे. एंड वी हैव सीन इमीडिएट रिएक्शन टू दिस. ऐसा नहीं कि यहीं पे टाइम पास कर रहा है. ये जो हाई वॉल्यूम्स आया उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू नीचे नहीं मिलके अपसाइड मूव आया है. सो व्हाट्स माय प्रीफर्ड व्यू एज ऑफ नाउ इज 37,000 से 35,500 के बीच में माइनर कंसोलिडेशन मिल सकता है, 100 points here or there. And once this consolidation ends, we may see fast up move. Once 37,000 is captured, we may see a strong fast upside towards 39,000 40,000 levels. एक बार 37,000 क्रॉस कर जाए, बैंक निफ्टी 37,000 क्रॉस कर जाए, 40,000 तक का जर्नी बहुत फास्ट में मिल सकता है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी ए मूव ऑफ this 37,000 to 40,000 का मूव हमको कई 2 weeks के अंदर आ जाए तो don't be surprised. I won't be surprised. Only thing is once this breakout happens. So why I expect कि 40,000 दिसंबर में आ सकता है? एक तो मंथली चार्ट पे पॉसिबिलिटी, एंड ऑन डेली चार्ट once this वॉल्यूम्स में थ्रो आउट वगैरह हो जाए, देन पॉसिबिलिटी है कि 40,000 इसी मंथ में मिल जाए. दिस इज वन बेस्ड ऑन द प्राइस एंड वॉल्यूम. वन मोर इंटरेस्टिंग जो अभी कहा था मैंने, अगर ऑब्जर्व करो, जिस पे ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं एंड जिसका काम हमको चर्चा करने में ही बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो है ऑब्जर्व दिस ओपन इंटरेस्ट. ये जो येलो में फिगर दिख रहा है 24,88,000, एंड उसके पहले अराउंड बैक टू बैक पिछले 3-4 डेज से ओपन इंटरेस्ट हैज बीन अबाउट 24 lakhs in bank nifty, and this open interest is highest since November month also. In November मंथ का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था समवेयर अराउंड 22,48,000. उसके पहले पिछले कुछ महीनों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है. ऑब्जर्व दिस. यू वोंट फाइंड सच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस अक्रॉस सोशल मीडिया. कोई जल्दी इस पे नजर नहीं लगाते, कोई ऐसे चीज पे ध्यान नहीं देंगे. मगर एक चीज कभी भी ऑब्जर्व करना चाहिए, दिस सच एक्सट्रीम लेवल्स वी गेट ओनली व्हेन देयर इज मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स, या कोई बड़ा मूव स्टार्ट होने के पहले ऐसे एक्सट्रीम लेवल्स आते हैं. नाउ इफ वी कंबाइन द एक्सट्रीम लेवल्स इन द वॉल्यूम्स, एक्सट्रीम लेवल्स in open interest, and after strong trending down move of approximately 1.5 month, and ये सब चीज को कंबाइन करते हैं तो लगता है कि एक बड़ा मूव का पॉसिबिलिटी बनेगा. ये बड़ा मूव का पॉसिबिलिटी कब बनेगा? प्राइस के हिसाब से बाई सिग्नल कब बनेगा? जब एक बार ये लेवल क्रॉस करता है, तो उसके बाद में, या
बिकॉज ये रेंज बाउंड में रह सकता है, एक 15 दिन और सता सकता है, एंड देन द मूवमेंट स्टार्ट। या हो सकता है बैंक निफ्टी हैज बीन नोन टू बी इन अ रेंज फॉर मल्टीपल मंथ्स, एक रेंज में रह सकता है बैंक निफ्टी। इट हैज हिस्टोरिकली बीन, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे नीचे एक फ्यू डेज था कंटिन्यू, यहाँ पे एक 1 मंथ था। इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ सच। सो जब भी 37,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन वी कैन लुक फॉर कॉल बाइंग फॉर टारगेट्स ऑफ 40,000 और 42,000 प्लस। 42,000 प्लस में नॉट कम विद इन 1 मंथ, may take couple of months में, यानी कि जनवरी तक आ सकता है। बट ओवरऑल 48,000 टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग बाय मार्च 2022। ये बोल्ड कॉल है मेरा। अगर हैव ए स्टॉप लॉस ऑफ 34,000, ये जो कंसोलिडेशन का लो था, और विजय ने भी जैसा कहा इलियट वेव में भी 34,200 के पास में वेव नेगेशन लेवल है। सो ब्रॉडली दिस 34,000 के स्टॉप लॉस पे अगर आपको 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी मिल रहा है, ये रिस्क वर्थ टेकिंग टू accumulate this bank nifty Bs or bank nifty March calls. If you can manage your risk properly, I expect bank nifty to hit 48,000 by March and 40,000 probably in December, by December end, or maybe little extension happens in January if this breakout does not happen soon. But broadly, maybe within a week or so, week or two, we may see some good action trending move starting. अगर 34,000 ब्रेक होता है, then get ready for this immediate target of around 30,000, near to 30,000, and potential target can even go all the way till 26,000, this zone. As long as this is defended, expect a big move in bank nifty. I am expecting a big move, a ride of approximately 10 to 12,000 points in next 4 months is highly rewarding opportunity not to be missed. आपको उसमें से अगर 2000 पॉइंट भी मिल गए तो बैंक निफ्टी में पर लॉट 50,000, एंड ये 2000 पॉइंट फास्ट में आएंगे। जस्ट आपका एंट्री उस टाइम पे सही रहना चाहिए। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली, और गाड़ी छूटने के पहले, गाड़ी का सिग्नल आने पे बैठ जाइए। गाड़ी पे पहले मत बैठ जाइए, पता नहीं है सिग्नल कब आएगा, महीने भर के बाद आएगा, हफ्ते भर के बाद आएगा, यानी 1 घंटे के बाद आएगा, आधे घंटे के बाद आएगा, कब आएगा। सिग्नल आने के बाद बैठ जाइए। अगर गाड़ी मिस हो गई तो बाद में एंट्री नहीं मिलेगा, फिर अगले गाड़ी की वेटिंग करना पड़ेगा। जैसा स्टेशन पे ट्रेन छूटने के बाद अगले ट्रेन की वेटिंग करना है, ट्राई टू कोरिलेट इट विथ, उसके कोरिलेट कर लीजिए। तो गाड़ी का सिग्नल आने पे मिस मत कीजिए। स्टॉप लॉस सिग्नल पे, जो सिग्नल पे जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस लगा के गाड़ी पे बढ़ जाइए अपने डेस्टिनेशन के लिए, जहां तक वो जा रही है। ट्रेल करते रहिए पोजीशन को, जल्दी बुक मत कीजिए। ऐसा नहीं कि सेकंड स्टेशन पे मैं एक बार उतर के देखता हूँ या यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टेशन पे कुछ मिलेगा क्या और ट्रेन छूट जाएगी। स्टंट्स मत कीजिए, आपके डेस्टिनेशन के लिए वेट कीजिए, ट्रेलिंग करते रहिए। इतना ही है बैंक निफ्टी के लिए यहाँ आज के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत स्ट्रेंथ है, वो स्टॉक डिस्कस करेंगे आफ्टर निफ्टी। लेट अस मूव टू निफ्टी नाउ। आई होप बैंक निफ्टी में आपको अच्छा लगेगा। कुछ आपके फीडबैक शेयर कीजिए। Yeah. Thank you for watching this bank nifty. We'll be moving to nifty. Over to you, Vijay.